सो हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज। हमने शुरू किया है अपर लिम्ब। दिस इज केस डिस्कशन नंबर 4 एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी able to follow, able to understand and try to correlate the clinical cases। ठीक है, तो 1 2 3 इज डन। अब ये चौथा केस आप देख लीजिए। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। विल स्टार्ट विद केस डिस्कशन 4 ऑफ अपर लिम्ब। फाइन स्टूडेंट्स, okay, have a look. So after axillary node dissection a patient cannot protract the scapula when pushing against a wall. The medial border of scapula protrudes। मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड क्या होता है, जनरली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में पस हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। वी हैव टू रिमूव द लिम्फ नोड्स एंड व्हेन अ लिम्फ नोड रिमूवल इज गोइंग ऑन, फिर उसमें एक नर्व इंजरी होती है। हाँ, राइट, द नर्व, यू आंसर द क्वेश्चन, सो द नर्व गेट्स इंजर्ड। अब नर्व इंजरी हो गया ड्यूरिंग एक्सिलरी lymph nodes removal। What does a person experience? The person experiences that the medial border of scapula becomes prominent. Person experiences that the medial border of scapula becomes prominent while pushing a wall. While pushing a wall, मतलब this is winging of scapula on attempted movement. Winging of scapula on attempted movement. समझ में आ रहा है बच्चों? एक तो axillary lymph node dissection दिया है। So which is the nerve which is involved during axillary lymph node के dissection में? That's a long thoracic nerve. Long thoracic nerve or nerve of Bell. This is very commonly involved during axillary lymph node dissection, or the long thoracic nerve is also involved during breast surgeries. Mastectomy के time involvement होता है. So mastectomy के time ही axillary lymph nodes की removal होती है, and that time the long thoracic nerve is injured. The long thoracic nerve supplies what? The serratus anterior. बच्चों मतलब जब ये स्टेम पढ़ोगे, व्हेन यू रीड द स्टेम ऑफ द क्लिनिकल केस, मतलब क्लिनिकल केस जब पढ़ोगे तो एक सर्टेन डायग्नोसिस हैज टू बी देयर इन योर ब्रेन बिफोर यू सी द क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चन देखने से पहले समथिंग शुड बी देयर इन योर ब्रेन व्हिच हेल्प्स यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहले ही सवाल नहीं देखना, ठीक है? ओके, सो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्ट कर रहे हैं मास्टेक्टोमी के टाइम, सो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज इन्वॉल्वड। लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाइज द, yes, it's also known as nerve bell or nerve to serratus anterior। ये serratus anterior को supply करती है, and what is the action of serratus anterior? It protracts the scapula, protraction of scapula, right? So let me just write down serratus anterior। हाँ, serratus anterior का action क्या होगा? Protraction of scapula, protraction of scapula। और कुछ एक्शन है? और कोई एक्शन याद आ रहा है आपको serratus anterior का? Yes, it is known as a boxer's muscle, boxer's muscle। So pushing and punching movements, right? Pushing and punching movement। जब अपन push या punch करते हैं तो protraction of scapula होता है। So that's protraction of scapula during pushing and punching movements। serratus anterior को हम क्या बोलते हैं? boxer's muscle। बराबर है? Any other action of serratus anterior बच्चों? Yes, it also helps in overhead abduction। ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ शोल्डर। ओवरहेड एब्डक्शन मतलब 90 एंड अबव। ओवरहेड एब्डक्शन को दो मसल्स हेल्प करते हैं, वन इज serratus anterior, दूसरा गेस ट्रेपेजियस। वेरी गुड, दूसरा है ट्रेपेजियस। सो ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म, टू मसल्स हेल्प्स, वन इज serratus anterior, दूसरा है ट्रेपेजियस। मतलब लॉन्ग थोरैसिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया, वो भी लिखा है व्हाइल पुशिंग, मतलब विंगिंग ऑफ स्कैपुला ऑन अटेम्प्टिंग मूवमेंट, तो डेफिनेटली ये serratus anterior है। वैसे बच्चों, just one more thing, if you know this, winging of scapula, एक मिनट, winging of scapula is due to paralysis of two muscles। दो मसल के पैरालिसिस से विंगिंग हो सकता है। नंबर वन is serratus anterior, serratus anterior, and number two is trapezius। serratus anterior and trapezius, मतलब winging of scapula is caused due to paralysis of two muscles। एक है serratus anterior, दूसरा है trapezius, दोनों से winging होता है। अब how are you going to distinguish whether this winging is due to paralysis of serratus anterior
और ये विंगिंग पैरालिसिस ऑफ ट्रेपेजियस की वजह से है। हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? तो है ना, क्या करते हैं ना, वी टेल द पर्सन टू गो एंड पुश द वॉल। जब ये वॉल को पुश करता है, मतलब द पर्सन इज परफॉर्मिंग अ मूवमेंट। जब अपन मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, जब विंगिंग होता है, so winging of scapula, paralysis of serratus anterior on attempting movement, on attempting movement, ठीक है। so winging of scapula is due to paralysis of serratus anterior। तो क्या होगा, this winging of scapula on attempting movement, which is the nerve involved, nerve कौन सी है, long thoracic nerve, long thoracic nerve। so long thoracic nerve involvement है, serratus anterior paralysis है, winging of scapula होगा on attempting movement, मतलब when a person tries to perform a movement, तब winging होगा। so that is paralysis of serratus anterior। अब दूसरा पेशेंट आया आपके पास एंड द पर्सन इज एट रेस्ट, मतलब नो मूवमेंट, बस ऐसे बैठा है, फिर भी देयर इज अ विंगिंग। सो विंगिंग ऑफ स्कैपुला, पैरालिसिस ऑफ ट्रेपेजियस, सो विंगिंग एट रेस्ट, विंगिंग एट रेस्ट। ठीक है, इसको इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, एक मिनट, आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, द बेटर वे टू राइट। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, एक मिनट। So winging of scapula, तो we'll make it like this। एक तो winging at rest होगा, winging at rest and winging on attempting movement, on attempting movement मतलब on performing a movement अगर winging होता है। so winging at rest is due to paralysis of trapezius, ठीक है, and this is due to paralysis of serratus anterior, serratus anterior। समझ में आ रही है? So what is the nerve supply of trapezius? Trapezius का nerve supply क्या है? Spinal accessory nerve, spinal accessory nerve। And what is the nerve supply of serratus anterior? Long thoracic nerve, long thoracic nerve। मतलब बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया? See, a person comes to your clinic, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, तो पर्सन क्या बोलेगा, व्हेन आई परफॉर्म अ मूवमेंट, जब मैं कोई मूवमेंट परफॉर्म करता हूं तब विंगिंग होता है, एंड देयर इज डिफिकल्टी इन ओवरहेड अबडक्शन। सो यू आर श्योर हु इज पैरालाइज्ड, सेराटस एंटीरियर, नर्व इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अगर विंगिंग एट रेस्ट है, दिस विंगिंग एट रेस्ट विदाउट एनी परफॉर्मिंग एनी मूवमेंट, तो दैट इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ट्रेपेजियस, व्हिच इज द नर्व व्हिच सप्लाइज द ट्रेपेजियस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और कोई एक्शन है ट्रेपेजियस का, ट्रेपेजियस का एक्शन इज, हाँ, एक तो ओवरहेड एबडक्शन है, मेन एक्शन ऑफ ट्रेपेजियस इज shrugging of shoulders, shrugging of shoulders। so there is drooping of shoulder, shoulder ऐसे droop हो जाता है, there is loss of shrugging of shoulder। हाँ, अगर ट्रेपेजियस पैरालाइज होता है तो विंगिंग एट रेस्ट होगा, प्लस लॉस ऑफ shrugging of shoulders, प्लस डिफिकल्टी इन ओवरहेड एबडक्शन, डिफिकल्टी इन ओवरहेड एबडक्शन। I hope this is clear to all of you। Have a look at this। हाँ, अब वापस देख लो। During after axillary lymph node dissection, हाँ, a patient cannot protect the scapula well। When pushing against a wall, the medial border of scapula protrudes। समझ में आ रहा है? So which nerve is involved? अब it is winging on attempting movement। So nerve involvement is long thoracic nerve, long thoracic nerve। इसका दूसरा नाम है nerve of Bell और nerve to serratus anterior, nerve of Bell और nerve to serratus anterior। इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5, C6, C7। nerve to serratus anterior, the root value is C5, C6, C7। Which muscle is paralyzed? It's the serratus anterior, serratus anterior paralysis है, ठीक है। Name one distinguishing feature via spinal accessory nerve injury। अगर spinal accessory nerve injury होती है तो भी winging होता है। Which muscle is paralyzed? Trapezius। और क्या मिलेगा आपको अगर ट्रेपेजियस पैरालाइज होता है तो ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर, ऐसे ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर। सो इसका आंसर होगा ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया ये सवाल? हाँ, तो एक एक टेक होम मैसेज है बच्चों, एक टेक होम मैसेज है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है, इट इज कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ टू मसल्स, एक है ट्रेपेजियस, दूसरा है सेराटस एंटीरियर। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर विंगिंग इज एट रेस्ट
कुछ मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा है फिर भी विंगिंग है, तो दैट्स पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस। अगर मूवमेंट परफॉर्म करते समय विंगिंग होता है, सो दैट्स पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। फाइनल, which nerve is involved? Long thoracic nerve, trapezius का spinal accessory nerve. What other feature will you get if trapezius is paralyzed? Drooping of shoulder, shrugging of shoulder is lost, so shoulder नीचे droop हो जाता है। फाइन बच्चे, सो कोई भी एमसीक्यू अगर आता है जिसमें मैस्टेक्टमी दिया गया है, मैस्टेक्टमी और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन दिया गया है, तो यू शुड अंडरस्टैंड, वो उतना पढ़ के समझना चाहिए कि यस, लॉन्ग थोरैसिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बिफोर सीइंग द क्वेश्चंस। अगर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इंजरी होती है तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट कहां पे होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। यहां पे ना पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होती है। इट इज वेरी सुपरफिशियल इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इज वेरी सुपरफिशियल। So when we removing the lymph nodes in the posterior triangle of the neck, which nerve can be involved? Spinal accessory. So अगर सवाल ऐसे आता है, a surgery is being performed to remove the lymph nodes in the posterior triangle of the neck, तब आपको समझना चाहिए स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ट्रेपीजियस पैरालिसिस होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर्स होगा, लॉस ऑफ ओवरहेड एब्डक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ये कंप्लीट सीरीज आप जरूर देखना, एंटायर केस डिस्कशन विल बी क्लियर। यही डिफिकल्ट होता है बच्चों को, यही समझ में नहीं आता कैसे कोरिलेट करे। सो इफ यू वॉच दिस कंप्लीट सीरीज यू गेट अ कंप्लीट ओरिएंटेशन। तो देखते रहना ये सीरीज, ठीक है बच्चों। आज का एमसीक्यू आपके लिए, ये तो केस डिस्कशन हो गया बच्चों, इसके साथ हम एक एमसीक्यू भी देते हैं आपको। सो ये एमसीक्यू देखना, उसको समझना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। दैट्स एमसीक्यू फॉर यू। हाँ, यस, द लॉन्ग थोरैसिक नर्व मोस्ट कॉमनली रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम, यस, समथिंग कोरिलेटिव टू द केस डिस्कशन। जो केस डिस्कशन हमने देखा उसी के रिलेशन में लॉन्ग थोरैसिक नर्व का दूसरा नाम है नर्व बेल, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। इट रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम विच रूट्स, वो आपको बोलना है। इफ यू हैव सीन दिस पूरा वीडियो, अगर आपने देखा है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दिस। ओके, आंसर दिस एमसीक्यू इन द कमेंट बॉक्स। बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखते रहना, इंस्टाग्राम हैंडल देखते रहिए, इसमें छोटे छोटे रील्स होते हैं, एजुकेशनल रील्स होते हैं। मैंने एक 30 डेज वाइवा चैलेंज भी दिया था इसमें, सो एवरीडे वन वाइवा क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखते रहना क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज, केस डिस्कशन ऑफ अपर लिप। थैंक यू सो मच, थैंक यू।